And he enters. Man for the big stage, the big occasion. The bigger the game, the more he wants to contribute. He likes a fight, he likes a scrap as well. Hi guys, today is a very important day in the history of Indian cricket. Virat Kohli, the most successful Indian Test captain, has called it quits. He has decided that he won't be a captain of Indian Test team anymore. He was a fantastic captain. There were a lot of things that he achieved. There are a lot of things that he could have achieved, but now all that is history. We are left to ponder why he took this decision and what are the things that he has left for Rohit Sharma or Jasprit Bumrah or Ravichandran Ashwin, whoever becomes the next captain. Though I feel Rohit Sharma is almost a certainty, but still let's see what BCCI decides. तो इस चीज को विराट कोहली की लेगेसी को डिस्कस करने के लिए वी हैव टू अक्षत विद अस. वी हैव अक्षत सेठ फ्रॉम बड़ोदरा and we have Akshat Agarwal, a die-hard Virat Kohli fan from Delhi. तो पहले मैं आपको शुरुआत कर देता हूं and what I will say is that Virat Kohli is a legend in Indian cricket. There is no denying the fact. He's a great batsman. He was given a lot of support by MS Dhoni. We cannot forget this. He was MS Dhoni's trump card. MS Dhoni की जीत में विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ है, just like युवराज सिंह. और MS धोनी ने भरोसा भी बहुत दिखाया विराट कोहली से. Virat Kohli reciprocated it back, and now his term has come to an end. Let's cherish the legacy and the moments that the great captain gave us. विराट कोहली की जो दो बातें मैं हमेशा याद रखूंगा, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर कभी भी विराट कोहली की कैप्टनसी, आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट मैच कैप्टनसी अलोन, व्हाइट बॉल कैप्टनसी को छोड़ के उसको टाइम हो गया. अगर मुझसे पूछी जाएंगी तो मैं दो बातें हमेशा याद रखूंगा. एक, जो हमारे फास्ट बॉलर्स की फिटनेस पे फर्क आया, जो हमारे फास्ट बॉलर्स की एबिलिटीज पे फर्क आया. आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू रवि शास्त्री आल्सो फॉर दिस, अ लॉट ऑफ क्रेडिट. ही इज अ वेरी अंडररेटेड कोच. देन जो दूसरी बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि हम लोग हमेशा सोचते थे कि 5 बॉलर से खेले होते तो हम जीतते. विराट कोहली ने इस फंडामेंटल को अप्लाई किया फॉरेन पिचेस पे भी. ही यूज्ड रविंद्र जडेजा एंड रविचंद्रन अश्विन वेरी वेल. तो ये तो दो मेरे उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी. तो मैं आप लोगों के भी व्यूज जानना चाहूंगा कि हाउ विल यू रिमेंबर विराट कोहली द टेस्ट मैच कैप्टन. आई वुड लाइक अक्षत अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली टू स्टार्ट. हाय अक्षत. हाय सर. पहली मींस पहला कैप्टनसी थी उसकी और उसने ट्विन हंड्रेड्स मारे थे एडिलेड में. 141 और शायद 119 था. वी लॉस्ट दैट मैच बाय 38 और 40 रन्स. लायन ने अच्छी बॉलिंग की थी. Sir, he has been the most successful captain for Indian cricket team and also the fourth in world. 40 wins in 68 match. It's remarkable. Means not everyone can achieve it. Percentage of 50 plus means superb. Just 2 losses at home. You can imagine how dominant our Indian cricket team was. The pace attack we have bowled. Our bench strength is so superb. Siraj, Shardul, Bumrah, Shami, such a great bowling strength. Along with he tried Rohit as opener, which was quite successful. I would also like to add Ravi Shastri's statement that he said if I would not be able to make Rohit as a successful opener in Test, he won't consider himself a successful coach, which he proved. So, in short, he was one of the best Test captain India has ever got. Very true, very true. I absolutely agree with you. And now I would like Akshat Seth from Barodara to give his views. Yeah. Go ahead, Akshat. Yeah, hello guys. So for me, Virat Kohli, the test captain, Virat Kohli overall as a captain was very good. But if you see one format where he enjoyed the most and we enjoyed the most seeing him captaining India was tests, without a doubt. And to me, it comes as a surprise that Virat Kohli has actually left the test captaincy. To be honest, I was not in my सपनों में भी नहीं सोच सकता था मैं कि मतलब विराट कोहली टेस्ट कैप्टनशिप छोड़ देंगे. मतलब ठीक है, चलो जो भी है. रिमेम्बरिंग हिम एज अ कैप्टन, या रिमेम्बरिंग हिम एज अ कैप्टन, मेरे को सबसे पहले तो मतलब ये बोलना है कि विराट कोहली हैड अ टीम which he got from MS धोनी. जो ट्रांजिशन के बाद MS धोनी ने टीम बनाई, he gave it to विराट कोहली. बट उस टीम को जो फ्लरिश किया ना,
that was Virat Kohli. So that is his legacy. Very true. जो जिन लोगों ने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, that was under विराट कोहली. आप किसी का भी नाम ले लो, अश्विन became the best test player, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कोई भी ले लो. So that was one. And दूसरा, we talk about a lot कि विराट कोहली ने ओवरसीज में हमें जीतना सिखाया एंड ऑल, बट दूसरा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विराट कोहली ने हमें घर पे हारना कभी नहीं सिखाया. We never lost a series in India under Virat Kohli's captaincy, and that is a big achievement. मतलब आप मेरे को जहां तक याद है, आई थिंक 7 से 10 सीरीज तो हम पक्का खेल लिए घर पे, एक भी नहीं हारे. तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट एंड अ टेस्टामेंट कि ही वाज अ गुड कैप्टन. मतलब जो परसेप्शन बना हुआ है कि विराट कोहली इज अ फास्ट बॉलर्स कैप्टन, एम एस धोनी इज अ स्पिन बॉलर्स कैप्टन, तो वो ब्रेक हो गया है वहां पे कि नहीं, जो भी है ये है. एंड लास्टली, जैसे आप दोनों ने बताया कि फिटनेस, आई थिंक फिटनेस जो इंडियन टीम में आया है, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ विराट कोहली, हु इज द पोस्टर बॉय, आई विल से, फॉर फिटनेस. सो दैट इज अ गुड थिंग कि इंडियन टीम इज वन ऑफ द मोस्ट फिट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. Very true. Very true. I would like to say one more thing about विराट कोहली here. मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑलराउंडर्स को यूज करने की बात की टेस्ट मैचेस में, बट रविंद्र जडेजा को जितना अच्छा यूटिलाइज किया विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस में, दैट वाज आल्सो एक्सेप्शनल. आई थिंक रविंद्र जडेजा एज एन ऑलराउंडर इन टेस्ट क्रिकेट प्लेयर इज अंडर विराट कोहली. एज अ बॉलर एम एस धोनी ले आया था उसको, लेकिन एज एन ऑलराउंडर एम एस धोनी से यूज नहीं कर पाया था. आई ऑल्सो फील कि आफ्टर 2011 एम एस धोनी एज अ टेस्ट कैप्टन हैड अ डाउनवर्ड स्लाइड. तो वो चीज भी एक ऐसी थी जो विराट कोहली को मिली थी, एंड विराट कोहली टुक इट वेरी गुड. अक्षत अग्रवाल ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया एडिलेड टेस्ट का. उसमें हमें ये समझ में आ गया था ये टीम हारने को तैयार है जीतने के लिए. नाउ आई कम टू अ फ्यू मोर थिंग्स वेयर आई वुड लाइक टू हैव बोथ ऑफ यू गिविंग योर व्यूज. पहली बात तो, क्या आपको लगता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स और हिटबैक गोइंग अराउंड इन इंडियन सिनेरियो राइट नाउ? क्या आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण ये फोर्सफुली स्टेप लेना पड़ा है, या विराट कोहली जस्ट डिसाइडेड एनफ इज एनफ? एक थ्योरी ये भी है कि ही जस्ट डिसाइडेड एनफ इज एनफ, एज अ बैट्समैन खेलो, फ्री होके खेलो, कुछ जरूरत से ज्यादा बर्डन ले लिया. क्या आप लोगों को लगता है इन दोनों में से कौन सा कारण बड़ा है जिसके कारण ही डिसाइडेड नाउ, लेट मी कॉल इट? अक्षत अग्रवाल, फर्स्ट ऑफ ऑल योर व्यूज. Maybe he want to play as a batter. मतलब मेरे को पता नहीं है क्या चल रहा है बीसीसीआई और विराट के बीच, और हम में से किसी को नहीं पता है, उन्हें ही पता है. They are all speculations. His form was very poor since 2020. So maybe he wants to play as better, pure better. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, फ्रीली खेलेगा. और शायद एक तरह से देखा जाए तो मे बी अमंग ऑल दिस सैडनेस जो आई है, शायद ये एक अच्छा नोट भी हो हमारे लिए, यू नेवर नो, है ना? तो अक्षत, व्हाट डू यू थिंक, पॉलिटिक्स और एनफ इज एनफ? व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज? सी, पॉलिटिक्स का तो आई डोंट नो, मतलब हो भी सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट इट्स ऑल स्पेक्यूलेशंस. बट मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक विराट कोहली वांट्स पीस इन हिज लाइफ अंडरनीथ. मतलब सी, अब ही हैज क्रॉस दैट, ही इज, मतलब 30 नहीं है, ही इज समवन हु इज 33 राइट नाउ. तो मेरे को ये भी लगता है कि यंग फैमिली 33, आई थिंक वो थोड़ा बर्डन कम करना चाहते हैं अपने पे. एंड आई थिंक ये सिमिलर सिचुएशन हमने देखी थी जब एम एस धोनी रिटायर हो गए थे इन 2014. नो वन सॉ इट कमिंग, बट उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था. विराट कोहली इज नॉट रिटायरिंग क्योंकि आई थिंक ही वांट्स टू प्ले एज अ बैटर एंड ही वांट्स टू प्रूव आल्सो टू द वर्ल्ड कि नहीं यार, एज अ बैट्समैन आई एम स्टिल देयर. वो 2 साल से जो भी चल रहा है, इट कैन बी अ बैड फॉर्म और दैट, but we have seen the glimpses की how Virat Kohli can be so good with the bat. Once in Adelaide, जब 74 बनाए थे, once in Chennai, जब एंडरसन का रिवर्स स्विंग काफी चल रहा था, तभी भी 70 ऑड बनाए थे. That was a very underrated good innings. And one was and one was 79 in the recent South Africa test. तो हाँ, तो आई थिंक डीप डाउन ही वांट्स कि ये जो भी झमेला वमेला जो भी है सब खत्म करो. और दूसरा मेरे को ये भी लगता है कि विराट कोहली को, मतलब सी,
दिस इज जस्ट स्पेक्यूलेशन और मैं भी सिर्फ मतलब आई कैन नॉट से हाँ व्हाट हाँ इनसाइड विराट कोहलीज माइंड, बट मेरे को ये भी लगता है कि जब से वो वनडे कैप्टनसी छीनी गई ना, मतलब इट वाज अ टाइप ऑफ दैट कि छीनी ही गई थी वो, उन्होंने छोड़ी नहीं थी। हाँ, तब से मेरे वो को थोड़ा लगता सा है कि हाँ, थोड़ा 50-50 उनके डाउट माइंड में डाउट हो ही गया होगा कि लेट्स आल्सो क्विट द टेस्ट कैप्टनसी। मतलब इफ ही वुड हैव वॉन साउथ अफ्रीका, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट फेयरवेल टू हिज टेस्ट कैप्टनसी I करियर। think it would have been different. No, I think it हाँ। would have been different. I think it have continued also. हम्म। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाते शायद वो कंटिन्यू अभी कर जाते। अच्छा, what do you But think? Who will be our captain? And I do you would think it will be a solution? I would personally want Pant. Rishabh Pant as a new captain. Hmm. चलो, great opinion. But I Reason he is young. no कि रोहित शर्मा ही बनने वाला है। Let's accept it. हाँ। उसमें हाँ। में से कोई कुछ कर नहीं पाएगा, रोहित शर्मा ही कैप्टन। तो मे बी ये 2023 बात तक उसको बोलिए 2023 बोलिए। तक का रोहित 2023 तक का रोहित रहेगा, उसके बाद चेंज हो। Maybe अगर रोहित शर्मा if he decides in 2023 कि he cannot continue on all three formats, which is a chance, तो he'll have to take a call कि कौन सी फॉर्मेट उसे कंटिन्यू करनी है। अब मैं तीसरी चीज पे आता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेगेसी ऑफ विराट कोहली हमने डिस्कस करी, वी डिस्कस ऑल थ्री ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज दैट विराट कोहली इज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। यस, वी ऑल एग्री टू दैट। विराट कोहली हैज अ बेटर सफर्ड इन हिज लास्ट 2 years, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपनी कैप्टनसी में खराब खेला है। ही हैज बीन इन प्राइम फॉर्म इन हिज कैप्टनसी, इट्स जस्ट दैट हिज फॉर्म इज eluding him for last 2 years, which is a very troublesome thing. जितना हम उससे परेशान हैं, उससे ज्यादा वो खुद परेशान होगा। But now coming to what are the inroads for Rohit Sharma or whoever is the new captain. This is my next topic. आज की तारीख में whoever becomes the new captain has 2 jobs to do. First and foremost, कैबिनेट में कुछ मल्टीनेशनल ट्रॉफी, यही तो एक है ना विराट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो लगता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो कि इग्नोर हो जाता है, मैं आज एक बात बताना चाहूंगा। आई हैव नो डाउट विराट कोहली इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम, बट इफ यू सी ओवरसीज में हमारी सिर्फ एक सीरीज विक्ट्री है अंडर विराट, एंड दैट इज 2018-19। 2021 को तो लेट्स अंडरस्टैंड इट अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी, 2018 and 2019 was under Virat Kohli with an Australian team which did not have Smith and Warner. So टेस्ट मैचेस दर पे दर टेस्ट मैचेस जीते हैं, कुछ नहीं होने दिया है। बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे, और अगर ये उठेंगे तो डू यू थिंक रोहित शर्मा और somebody else has a chance to fulfill this dream or to cover up for this lacune, जैसे कि विराट ने कुछ जो धोनी की चीजें छूट गई थी उनको किया था। पहले मैं आपको अपना बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है विराट इज अ कंप्लीट टीम मैन, तो वी विल नॉट सी विराट लूजिंग इंटरेस्ट इन समबडी एल्सेस कैप्टनसी, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। विराट विल गिव हिज 110% फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड विद विराट अराउंड रोहित शर्मा विल नॉट बी अलोन ऑल्सो। इफ रोहित शर्मा बिकम्स द कैप्टन, will he be able to do this? My answer is yes, because I feel the team is as good. If the team is good, the captain becomes good. So what are your views about it? Do you think Rohit या जो भी कैप्टन करेगा वो कर पाएगा, या आपको लगता है नहीं, कोई चांस नहीं है? आई विल आस्क टीम अक्षत अग्रवाल। सर टीम इतनी अच्छी है कि हम कहीं भी जीत सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी बस ट्रू। थोड़ा कुछ सा बाद में आप बताएं। कुछ हाँ हाँ हमें चेंजेस लाने जरूरी है, जैसे मिडिल ऑर्डर में पुजारा और अजिंक्य रहाणे का बहुत खराब फोन था, फिर भी हम उन्हें बैक कर रहे थे। कुछ बोल्ड हाँ, डिसीजन कहना लेने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कभी कभार वो बोल्ड डिसीजन फ्रूटफुल भी हो सकते हैं, और लेकिन आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, बट यू नीड टू टेक रिस्क। बिल्कुल ठीक है। सो और मुझे लगता है सीरीज में क्या होगा, है ना? इंग्लैंड में हम 2-1 से आगे हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत क्रूशियल मैच है जो उनमें होने वाला है। लास्ट मैच क्रूशियल होने वाला है, या तो ड्रॉ होगी सीरीज या हम जीतेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लूज इट। यस, वेरी ट्रू, बट जीतने का वो आखिरी मौका है। ओके, सो मैं मेरा व्यू पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक देर आर मेनी कैप्टेंसी कैंडिडेट्स, बट आई स्टिल फील कि रोहित शर्मा को ही कैप्टेंसी करनी चाहिए एट दिस पॉइंट। माई रीजन इज, हाँ, ही इज इंजरी प्रोन, ही इज 34, बट मेरे को ये लगता है कि केएल राहुल हो, जसप्रीत बुमराह हो या ऋषभ पंत, आई थिंक दिस थ्री विल बी द लीडिंग वाइस कैप्टेंसी कैंडिडेट्स। दे नीड समवन जो स्मूथ ट्रांजिशन एक दे पाए, जैसे अनिल कुंबले ने दिया था आफ्टर राहुल द्रविड़ टू एमएस धोनी। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए आई फील कि रोहित शर्मा शुड बी द कैप्टन राइट नाउ। एंड उनके
नेक्स्ट रोड की आप- बात, हाँ, तो अगर मैं उनके रोड अहेड की बात करता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि जो विराट कोहली ने काफी अच्छे काम किए, बट देयर वर सम थिंग्स जो नेगेटिव्स में भी आती है, वो हर एक के साथ आती है। MS धोनी की नेगेटिव्स विराट कोहली ने अच्छे से सॉल्व की एंड ही वाज अ गुड कैप्टन, बट उनके टेन्योर में भी काफी नेगेटिव थिंग्स थी जो अब सॉल्व होनी चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला यहाँ पे होगा, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ टीम। तो दूसरा प्लेयर्स की सिक्योरिटी, क्योंकि सी हमने गलत बंदों को तो बैक किया ही, बट सही बंदों को उनका ड्यू रिवॉर्ड नहीं दिया। एंड हनुमा विहारी टॉप्स दैट लिस्ट फॉर मी। ये जो 2-3 इश्यूज है ना, आई थिंक ये रोहित शर्मा को सॉल्व करने पड़ेंगे इन हिज कैप्टनसी टेन्योर, सो दैट कि जो द ट्रांजिशन दैट वी मेक फ्रॉम विराट कोहली द कैप्टन टू द नेक्स्ट एरा, वो स्मूथ हो जाए। एंड जो हमने ट्रेंड, एटलीस्ट ट्रेंड तो स्टार्ट किया कि वी हैव स्टार्टेड विनिंग ओवरसीज टेस्ट मैचेस, वो टेस्ट सीरीज को कन्वर्ट जो करना है ना, आई थिंक उसके लिए 2-3 जो इश्यूज होंगे वो एक सॉल्व करने हैं। एंड दूसरा, रोहित शर्मा हैज टू बी प्रोएक्टिव। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि विराट कोहली विल सपोर्ट रोहित शर्मा, बिकॉज सी सबके लिए इंडिया फर्स्ट होता है, सबके लिए इंडिया फर्स्ट होता है। तो विराट हाँ, तो सपोर्ट तो फुल्ली मिलने वाला है। हाँ, नंबर 1 लाना टेस्ट मैच टीम में अजहर की कैप्टनसी में थोड़े दिन के लिए हम लोग आए थे, बट वो चीज शुरू हुई थी जब MS धोनी कैप्टन बने थे। ही बिकेम नंबर 1 आफ्टर दैट, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल शुरू हुआ था। और उसके बाद टू विराट कोहली क्रेडिट, हम कभी नंबर 2 नहीं आए इसके। तो अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो रोहित शर्मा को ध्यान रखनी है, और विराट उसके साथ सपोर्ट पे है। एंड आई बिलीव रोहित एक ऐसा लाइकेबल बंदा है ना, रोहित इज नॉट डिसलाइक, रोहित इज अ वेरी लाइकेबल गाय। एक लास्ट चीज जिसके बारे में मैं आपके भी व्यूज जानना चाहूंगा और मैं बोलना भी चाहूंगा, वो है टू मच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया ऑन आवर प्लेयर्स एंड ऑन आवर फैंस। एक लाइन में समाप्त कर दीजिएगा, सिर्फ एक लाइन में, ज्यादा समय नहीं देंगे इस बात को, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमें इस बात को वैसे भी ज्यादा समय देना चाहिए। ये है ही नहीं ये टॉपिक जिसको डिस्कस करना चाहिए, पर फिर भी आई जस्ट गिव वन लाइन फॉर मी। आई थिंक इग्नोरेंस इज ब्लिस। सुनो ही मत, अपना आगे बढ़ो। क्या कहते हो आप? ओवर हाइप कर देते तो इग्नोर करके चलो। बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगता है कि नेमिंग एनीबॉडी एज सम पर्टिकुलर फैन की बात सही नहीं है। वी आर ऑल इंडियन क्रिकेट फैन, हम लोग क्रिटिक भी हैं, हम लोग उनकी तारीफ भी करेंगे। टिल यस्टरडे आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम मिस्टर विराट कोहली, आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन नाउ after he called it quit as a captain, I'm just remembering what all he has done as in his legacy as a captain. But I think as real fans, अब टीम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम टीम ये प्रण लें कि हम अप्रिशिएट भी करेंगे और हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे हमारे कैप्टन को, तभी तो हम रियल फैन है कि नहीं? बिल्कुल। Note, and I hope all of us support Rohit Sharma the way we did Virat Kohli, or whoever becomes the captain. We support him in the same way, because I'm sure the great man that he is, he is not gonna change at all. Virat Kohli, salute to you. You were a great test captain, and I hope we have not seen the best of you as a batsman. We are about to see that. I end on this note. Thank you both the Akshat. It was a pleasure talking to you all.